اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 16 جولائی 2020، میں مسیحا مہادیو آ چکا ہوں اور یہ ویڈیوز دیکھیے گا۔ یاجوج ماجوج جہاں سے نکلے چائنیز ظاہر ہوئے وہ نیشن کووڈ-19 کے ذریعے، اللہ وہاں پر ہی بارش بھیجتا ہے اچانک۔ پہلی نیوز آتی ہے یہ کووڈ-19 کی وہیں سے، اس کے بعد یہ دوسری بڑی خبر آتی ہے، اندر ڈیزاسٹر ووہان سٹی ہubei پروونس۔ کیسی یونیک بارش ہے، لوگ کہہ رہے ہیں 33 ایئرز میں 22 سال میں ایسی دیکھی نہیں گئی، یا اس سے بھی زیادہ، بعض تو 60 سال بتا رہے ہیں، بعض سینچری میں بتا رہے ہیں۔ اتنی پاک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں سے نکلے، جہاں پر مرے وہیں پر صفائی چالو ہے۔ دیکھیے سارے یہ ویڈیوز نیوز والے ایک کے بعد ایک۔ Another day, another crisis. July 14, 2020. In China, more than 400 rivers have risen beyond their warning levels. China is facing its worst floods in 33 years. Floods and landslides have uprooted millions. Dozens have been killed, and the worst, we are told, is yet to come. That is the number of people that China has evacuated from their homes. China hasn't seen anything like this in 30 years. The worst floods in more than 30 years. More than 100 people have died so far. 28,000 homes have been destroyed. 33 rivers are flowing at the highest levels. یہ کہہ رہے ہیں کہ 33 ایئرس میں ایسا نہیں Alerts have دیکھے۔ been issued on a total of 433 rivers. Water levels of 433 rivers in China have exceeded the alert height since June, of which 109 have seen a water level topping the warning line. Floods in 33 have hit their historical records. The Yangtze River, the upper reaches of the Yellow River, the Xijiang and Beijiang rivers in the Zhujiang River Basin, and the Taiyou Lake have seen all-time high floods. This is the most punishing flood season for China. Most of the mainland has been affected by floods. But the biggest cause of concern is the Yangtze River. The Yangtze flows through the Hubei province. It's where the city of Wuhan is located, the original hotspot from the coronavirus outbreak. And now the Chinese citizens living there could be staring. اس میں بھی ووہان کا نام لیا جا رہا ہے جہاں سے کورونا وائرس نکلا۔ The historic high water levels on the Yangtze are pushing the Three Gorges Dam to its limits. It was the largest engineering project in China. When it was completed in 2006, it was the largest dam structure in the world. The dam has begun opening its floodgates. یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، دنیا کا سب سے بڑا یہاں پر Afraid that the dam may not be able to hold الیکٹریسٹی flood water. پاور پلانٹ ہے۔ Fear that the water could breach its banks. The Three Gorges was a controversial infrastructure project. Millions were displaced to build it. Reportedly, around 600 kilometers of area was submerged to build this dam and the hydroelectric facility. There were protesters and اب آپ دیکھیں کہ پورا علاقہ، ہر گھر یہاں پر حدیث کے مطابق
पानी से धुल जाएगा, कोई दीवार कोई ऐसी बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि अल्लाह ख़ुद जानते हैं कि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है जो अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह भेजता है फरिश्तों को काम देकर, यानी अमल एक जॉब देकर भेजता है। जैसे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों को भेजा, लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा सोडोम और गोमोरा सिटी को तबाह करने के लिए, तो वैसे ही अल्लाह ने फरिश्तों से ये काम लिया है। उसने वायरस डलवाया यहाँ पर अल्लाह ने, और फिर अब अल्लाह ही क्लीन कर रहा है, सैनिटाइजेशन कर रहा है हर तरफ, क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये वायरस बहुत डेंजर है। और उसी तरीके से सारी दुनिया में भी अल्लाह बारिश के ज़रिए सैनिटाइजेशन कर रहा है, नेचुरल सैनिटाइजेशन। Opposition, but the Chinese authorities chose to ignore it. Now, nature is testing China's so-called infrastructure marvel. Hubei is yet to recover from the damage of the coronavirus. But now, the floods and a potential dam overflow to the river are another devastating blow in China. Bureau Report, Beyond World is One. ये देखिए अनदर वीडियो, एक्सट्रीम फ्लडिंग फॉर चाइना वुहान जुलाई 14, 2020, वुहान फ्लड। And I welcome you back to the Debritic Channel. And today we are talking about the Wuhan floods. And look at this. This is dry land in the picture on the left, and then this is the new flooded area on the right. And you can see that thing, somebody's obviously in a boat that took For the a same bridge, picture. Now the next 10 Google. days in China doesn't bode well, as 8 of those 10 days is the past, ladies and gentlemen. That Three Gorges Dam, there's a lot of pressure on that thing, and who knows what is going to happen. Now, China wants everybody to give them a break and says that Three Gorges Dam's functioning perfect, but it isn't. You see, that could possibly negative thing. Hope they can get it in. Then, this, if that spillway been earthquakes, there's been sickness, something that can be really bad has happened that we can worry about. But all this farmland is shortages, potatoes, tomatoes, America, and shortage of food. पूरा सिटी को धोया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से सैनिटाइजेशन हो रहा है पूरी तरीके से। आप देखें नेचुरल सैनिटाइजेशन, क्योंकि बारिश पड़ेगी ऊपर से, पूरा मॉइस्चर पूरा एयर के अंदर के जम्स को, बैक्टीरिया को, सबको लेकर, वायरसेस को लेकर मट्टी में जाएगी, पूरा मिक्स हो जाएगी। वहाँ पर अल्लाह ताला उसको पूरा ख़ात्मा करके फिर एक नया पूरा सिटी क्लीन करेगा। यही हदीस में आया है कि याजूज माजूज जहाँ मरे होंगे वहीं पर ये वाक़या होगा। सो ऐसा हो रहा है। वैसे अगर आप देखें तो आग का जो वाक़या हुआ 2019 में, वो जहाँ मैं मसीहा रह रहा हूँ, महादेव रह रहा हूँ, वहाँ पर नहीं हुआ, वो दूसरी जगह हुआ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, उधर इलाक़ों में हुआ, जो कि एबनॉर्मल था। और हदीस के मुताबिक यही है कि वो एक तरफ होगा और मसीहा दूसरी तरफ होगा, यानी आउटसाइड इंडिया होगा वो वाक़या फायर का जो हो चुका। समझ रहे हैं आप? आज तारीख़ 16 जुलाई 2020 है। आप देखिए ये वुहान सिटी के अंदर क्या हो रहा है। मोर फ्लडिंग इन वुहान चाइना जुलाई 14। ठीक है, ये अब आप देखिए कि पूरा शहर कैसे पानी में।
आप देखिए कि वहीं पर ख़ास तौर से जहाँ पर फ्लड आया है दिखाई दे रहा है 东岸该响点后替连后后后中质量，给你港外，哦，地下就我超市哦。 हकीकत में ये पूरा शहर वुहान को धोया जा रहा है। 一看就不会。我站的兄弟。抢眼车本物东风4B 3434。 福州快165，车底被放在这里。165是西安到昆明。这里，到喽。 औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 16 जुलाई 2020 है। मैं मसीहा महादेव जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकेंड कमिंग आ चुका हूँ, कल की अवतार। लेकिन मैं मुसलमानों का ईसा मसीह मेहदी नहीं। वो लोग जाएँ अपने उलमाए दीन के पास, उनसे तलाश करवाएं कि कहाँ है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। ठीक है, मैं तो सिर्फ ये मोमिनों में, नॉन मुस्लिम्स में बयान कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बयान करना चाहता हूँ ख़ास तौर से वुहान हुबे प्रोविंस चाइना में जो फ्लड आया है, जो बारिश बहुत हो रही है वहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह ताला सैनिटाइजेशन कर रहा है। आज आप देखिए वुहान में यानी चाइनीज़ याजूज माजूज ज़ाहिर हो चुके हैं। उनके अंदर जो कीड़ा निकला गर्दन में, जिससे विबा फैली सारे जहां में, हदीस में आता है कि एक विबा फैलेगी तुम लोगों में क़ुर्ब क़यामत, जैसे बकरियों में फैलती है। ज़रा गौर करिए, ये विबा क़ुर्ब क़यामत वाली विबा है जो दूसरी हदीस में आती है। लेकिन उस हदीस में ये जिक्र नहीं है कि वो विबा कहाँ से फैलेगी, कैसे फैलेगी, क्या है, लेकिन वो जिक्र दूसरे अंदाज में मौजूद था। वो याजूज माजूज चाइनीज़ की गर्दनों में जो कीड़ा यानी कोविड-19 वायरस, वही विबा फैली वहाँ से, चाइनीज़ लोगों से, एक ऐसे मार्केट से जहाँ पे हराम जानवर खाया जा रहा था, जहाँ पर हराम जानवर खाए जा रहे थे। सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, वो सारे जानवर जिसको अल्लाह ताला ने मना फरमाया, जिसके दांत हैं, बैट्स, चिमगादड़ वगैरह वगैरह, तो इस बात का सबूत है कि वो एथिस्ट लोग हैं और फिर मुनाफिकीन हैं, कुछ क्रिश्चियंस, कुछ दूसरे मज़हब के। तो अल्लाह ताला वहाँ पर से वायरस को फैलाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से है निशान, और ये अल्लाह जानता है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बयान करवाया अल्लाह के नबी के ज़रिए हदीस में, जो कि अल्लाह के नबी के ख्वाब के ज़रिए था,
کہ اس وائرس کی بدبو، یعنی اس دیکھیے جو یاجوج ماجوج مرے ووہان میں، ہبئی پروونس میں، چائنا میں، اور وہیں سے سارے جہاں میں یہ وائرس پھیلا۔ یہ وائرس پھیلا کیسے؟ لوگ کہہ رہے ہیں یہ چھینک سے، پانی کے ذریعے پھیلا، ناک کے ذریعے پھیلا، چھونے سے پھیلا، مگر حقیقت میں یہ ہوا سے بھی پھیلا ہے، کیونکہ سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں۔ تو یہ وائرس پھیلا تو بدبو اس کی سارے جہاں میں ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدبو ان لاشوں کی، یاجوج ماجوج کی جو مرے پڑے ہوں گے ہر طرف، کہاں؟ جہاں سے وہ نکلے وائرس، جہاں سے یاجوج ماجوج ظاہر ہوئے، وہیں سے یہ وائرس ظاہر ہوگا نا، کیونکہ انہی کی گردنوں میں یہ وائرس پیدا ہونا تھا۔ تو ایسا ہوا، تو وہ جو وائرس ہوتا ہے، وہ جو بدبو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایکچولی ایئر پیکٹس ہوتے ہیں، یعنی ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں جس میں وہ جراثیم ہوتے ہیں، ان کے جسم کے جراثیم، ان کے جسم کی لاشوں کے جراثیم، جس کے اندر کووڈ-19 وائرس موجود ہے۔ اسی لیے ان کی لاشوں کو جلایا جا رہا ہے اور اتنا اندر گاڑا جا رہا ہے، 25 میٹر، 10 میٹر، 5 میٹر، 10 میٹر، پتہ نہیں 7 میٹر کتنا اندر، تاکہ ان کے جسم سے وہ وائرس ہوا میں نہ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وائرس ہوا میں پھیلنے والا ہے، ایئر بورن وائرس بھی ہے کووڈ-19۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں، یعنی سارے جہاں میں، ایک بالش زمین بھی ان کی لاشوں سے نہیں رہے گی جو ان کی بدبو اتنی پھیل جائے گی۔ تو بدبو کیا ہے؟ بدبو کیا ہے؟ یہ بدبو ایکچولی ہوا کا ایک جھونکا ہے جس میں جراثیم ہے، جس میں وائرس ہے۔ وہ اب دیکھیے کہیں کتا مر جاتا ہے، بازار میں آپ جاتے ہیں تو کتا مر گیا تو اس علاقے سے گزرتے ہیں تو ایک قسم کی بدبو آپ کا جھونکا آتا ہے آپ کو۔ تو کیا ہے وہ جھونکا؟ وہ جھونکا ہے وہ جراثیم جو ہوا میں گھوم رہے ہیں، جو بہت باریک ہے، خربوں کی تعداد میں، وہ آپ کے منہ سے، آپ کے جسم سے گزر گئے، آپ کے اندر گھسے تو آپ نے ایک قسم کی بو محسوس کی، بدبو۔ اسی لیے جب کوئی باہر جا کر آتے ہیں گھر سے باہر جا کر بازار سے واپس آتے ہیں تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نہا لو، صابن سے نہا لو، راستے کی ساری ناپا کی گندگی پتہ نہیں کہاں سے چل کر آئے، پورے جسم کے اوپر سے نیچے تک جراثیم ہیں آپ کے، چپل جوتا اپنا باہر نکالو اور آؤ باتھ روم میں سیدھے چلے جاؤ اور وہاں پر پورا نہا لو، کپڑے بھی بدل دو، کپڑے بھی سینیٹائز کر دو، اپنے جسم کو بھی سینیٹائز کر لو، گرم پانی نہا لو اور پھر نکل کر باہر آؤ، تب کھانا کھانا، بیٹھنا، بات چیت کرنا۔ لیکن یہ کتنے لوگ فالو کرتے ہیں آج؟ ہر کوئی بازار کو جاتا ہے، پلٹ کر آتا ہے، لیکن ہر بار نہیں نہاتا۔ ذرا غور کریے، یاجوج ماجوج کی لاشوں کی بدبو کیا ہے؟ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ یہ بدبو سب کو سونگ آ رہی ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہے یہ بدبو کی۔ آپ بولیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کے منہ پہ لگا ہوا ماسک، آپ کے منہ پہ لگا ہوا ماسک اس کا ثبوت ہے۔ میری بات سمجھ لیں بھائی، میں غلط تو نہیں بتا رہا ہوں۔ وہ ماسک کیا ہے آپ دیکھیں اس طریقے سے، یہ کیوں لگاتا ہے آدمی؟ کیونکہ ہوا آپ کے ناک میں نہ جائے۔ ہوا میں کیا ہے؟ ہوا میں بدبو ہے۔ بدبو کیسی ہے؟
हवा में वो वायरस है जो आपके नाक के अंदर घुस सकता है, तो वो तो घुस जाएगा, फिर भी आपके मुंह से वो छींक के ज़रिए या नाक के ज़रिए या आपसे बाहर ना आए, फिर भी आप लोग मास्क लगा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, साइंटिस्टों ने, कि ये सिर्फ छींक से ही, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं छींक के पानी के, उससे ही फैलता है, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च बता रही है कि ये हवा में भी फैल रहा है। तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला याजूज माजूज जहाँ मरेंगे, देखिए वुहान चाइना में याजूज माजूज मरे कि नहीं मरे चाइनीज़ ये वायरस से, हाँ, उससे फिर विवाह सारे जहाँ में फैली कि नहीं फैली, लोगों में फैली कि नहीं फैली, बकरियों की तरह फैली। तो हदीस में ओरिजिन भी आ गया, वो याजूज माजूज का ओरिजिन याजूज माजूज थे जहाँ से निकलेगी ये वायरस और सारे लोगों में फैलेगी। इसीलिए जो कोई लोग याजूज माजूज नहीं भी है तो वो भी मर रहे हैं, आपने देखा। तो हवा में आपने अक्सर देखा होगा शाम के वक्त मच्छरों का एक गुच्छा रहता है, एक ऐसे घूमता रहता है एक चादर की तरह, जैसे टिड्डियों का एक लश्कर आता है, यानी ग्रुप आता है एक चादर की तरह, जैसे कबूतरों का, परिंदों का एक झुंड आता है, उसी तरीके से एक झुंड वायरस का भी होता है, बैक्टीरिया का भी होता है, जो हवा में आपको नज़र नहीं आता लेकिन आपकी नाक के अंदर चला जाता है, मुंह में चला जाता है, आंखों में चला जाता है, सारे जिस्म पर आ जाता है। तो आपके सारे जिस्म को सैनिटाइजेशन करना होगा, मगर क्या आप कर पाएंगे? बड़े बड़े लोग अपने सारे घर को सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के घर को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, मुकेश अंबानी के घर को सैनिटाइजेशन हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है, सारे ट्रेन्स को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, हर दुकान में हाथों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, बसेस में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो क्या ये सैनिटाइजेशन कहाँ कहाँ करेंगे आप? सारी दुनिया में इस वक्त सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ये वायरस फैला है और फैल रहा है, और इसके अलावा भी दूसरे बैक्टीरिया और जर्म्स और वायरसेस जो फैल रहे हैं, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला इसको बारिश के ज़रिए सैनिटाइजेशन कर रहा है। आप बोलेंगे कि पानी बारिश का जो होता है बादलों में, उसमें तो कोई केमिकल्स नहीं होते, वो अल्लाह सैनिटाइजेशन कैसे कर रहा है? ज़रा सोचिए, वाटर का जो फार्मूला है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, उसके अलावा H2O के अलावा भी मिनरल्स इतने बारीक उसके अंदर होते हैं जो माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते। पानी के अंदर इतने बारीक केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको माइक्रोस्कोप में भी नज़र नहीं आते। बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इसको देख सकते हैं। तो वो जब इस हवा में, बादल क्या है? बादल एक मॉइस्चर का गुच्छा है, बहुत बड़े मॉइस्चर का गुच्छा है। जब वो नज़दीक हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तब वो बारिश के बूंदों में तब्दील होकर ज़मीन पर आता है। तो उसके साथ हवा, केमिकल्स जो हवा में, वायरस जो मौजूद है, वायरस के गुच्छे, पैकेट्स, वो भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, और फिर वो नरम पड़कर उसी पानी के साथ ज़मीन में जाते हैं। और ज़मीन जो है बहुत बेहतरीन डिकम्पोज़र है। ज़मीन के अंदर वो ऐसे मिनरल्स, ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो सारे वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, जर्म्स को धोकर वो अपने आप में जमा लेती है वापस। ज़रा गौर से देखिएगा ये सारा वीडियो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हदीस शरीफ में अल्लाह ताला जो फरमाता है वो बात पूरी हो रही है माशाअल्लाह से,
کہ اللہ تعالیٰ سینیٹائزیشن کرے گا جہاں سے وائرس نکلا ہے، جہاں سے ان کی لاشیں پڑی ہوں گی وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو علاقے کو دھو ڈالے گا بارش سے۔ تو وہی ہو رہا ہے ووہان میں، چائنا میں۔ آپ دیکھیں جو 200 سے زیادہ دریا بھر گئی ہیں، یانگسی ریور جو بھر کر بہہ رہی ہے، اس کا مٹی کا رنگ ہو گیا ہے، اس میں مٹی مل گئی ہے، اور پورے عمارتوں پر بارش گر رہی ہے۔ پورے عمارتوں کو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ سینیٹائزیشن کر رہا ہے۔ یہ حدیث ہو رہی ہے اور یہ بارش یونیک ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ بارش اس صدی میں پہلی بار ایسی نوٹس کی گئی ہے جب سے 3 جارجز ڈیم بنا 2006 میں، اس کے بعد سے اب تک اتنی ہیوی بارش نہیں ہوئی، اتنی طریقے کا بڑا طوفان نہیں آیا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 60 سال میں ایسا طوفان نہیں آیا چائنا میں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ 33 ایئرس میں نہیں آیا۔ چلیے ہم سب سے چھوٹا ہی مان لیتے ہیں، پچھلے 22 سال میں نہیں آیا، تو یہ یونیک ہو گیا کہ نہیں؟ یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہونے کے بعد دوسری بڑی نیوز وہاں سے یہ آتی ہے کہ فلڈ آ گیا، وہاں پر بہت بارش ہو رہی ہے، پورا علاقہ اس وقت بارش سے ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا معجزہ ہے، خاص ہے۔ سارے چائنا میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ ویسے تو بارش کا سیزن ساری دنیا میں ہے ابھی اس وقت، ساری دنیا میں سینیٹائزیشن اللہ کی طرف سے چل رہا ہے تاکہ اس خطرناک وائرس کو اللہ خود ختم کر دے۔ یہ ایک چھوٹی سی سزا تھی دنیا کو، یاجوج ماجوج کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب ممکن ہے اس پورے بارشوں کے بعد، ابھی 2020 جون 24، 25، 26 سے لگا لیں آپ، کیونکہ امیڈیٹ تو فلڈ نہیں آ گیا، پہلے تیز بارشیں ہوئی پھر فلڈ چالو ہوا، تو تقریباً 20-22 دن تو آج گزر چکے ہیں۔ تو کیا اور 18-20 دن بارش ہونے کا امکان ہے؟ تو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ریڈ الرٹ کیا ہے ان لوگوں نے 32 ڈیز کے لیے۔ یہ نیوز 3 دن پرانی بتا رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40 دن کا ہی فگر آ رہا ہے۔ یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو جو سینیٹائزیشن ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ساری دنیا کے لیے اللہ کر رہا ہے، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ زیادہ کہاں؟ جہاں پر وائرس بہت زیادہ آج بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ووہان، ہبائی پروونس، چائنا، وہ چائنا جو بڑا نیشن، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے، جاپنیز، ساؤتھ کورینز، نارتھ کورینز، ویٹنامیز، بینکاک، سنگاپورینز، تھائیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پورے ان جیسے، منگولینز بھی۔ تو یہ جو وائرس کی کلیننگ ہو رہی ہے، سینیٹائزیشن اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، ذرا غور کریں آپ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے نہیں مانا یاجوج ماجوج اس کو، مگر ان کا دل کہہ رہا ہے وہ مان رہے ہیں، لیکن ان کو قبول کرنا نہیں آتا مسیح مہادیو کو، مجھے، اسی لیے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ چائنیز نہیں ہے یاجوج ماجوج، یہ وہ وائرس نہیں ہے، یہ وہ وبا نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا انکار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مسیح دجال کا انکار کر دیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کا، کہ وہ مسیح دجال ہے۔ ان لوگوں نے دعوت من الارض کا انکار کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھ مہادیو کا انکار کر دیا، بھگوان شیوا کا، کل کی اوتار آخری مسیحا کا۔ وہ اپنے خیالوں کے امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے انتظار میں ہیں، جو کبھی آنے والے ہیں نہیں، نہ کبھی پورا ہوگا۔ تو میں ان کا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں، میں تو اس وقت تبلیغ کر رہا ہوں نان مسلمس میں اور مومنوں میں، لیکن میرا کوئی دعویٰ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ ان لوگوں سے میں نے توبہ کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی
मुसलमानों से तौबा की है, कुरान हदीस से नहीं की है। मैं तो हक़ पर कायम हूँ। उन लोगों ने इनकार किया, बोले कि तौबा करो, मैंने कर लिया, बस उनका में कुछ भी नहीं। मैं तो उनके लिए मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, समझ में आ रही। लेकिन मैं दुनिया को बता रहा हूँ कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, उनके बाद कोई नबी नहीं, और वेद पुराण सच्चे, बाइबल सच्ची, तौरेत सच्ची, ज़बूर सच्चे। तो क्या ये गलत है? क्या आप लोगों को एतराज़ है इसका? अल्लाहु अकबर। हाँ मेरे भाइयों, तो आपने देखा कि वुहान में किस तरीके से फ्लड आ रहा है। ये दुनिया के मुंह से अल्लाह खुद बोलने लगवा रहा है कि अनदर डिजास्टर फौरन वुहान कोविड-19 वायरस के बाद चाइना में अनदर अजाब, यानी और एक अजाब बारिश का। वो अल्लाह एक्चुअली ये नहीं कहा हदीस में, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि फ्लड आके पूरा तबाह हो जाएंगे, नहीं कहा। अल्लाह बारिश भेजेगा, बहुत बारिश जो साफ करेगी पूरा। तो वो सफाई की बारिश चालू है वुहान में, हुबई प्रोविंस में, चाइना में। आप बोलेंगे कि मैं मसीहा तो हिंदुस्तान में हूँ, तो फिर ये बारिश वहाँ क्यों हो रही है? क्योंकि वहीं से याजूज माजूज जाहिर हुए, वहीं से उनकी लाशें गिरी, वहीं से वायरस का शुरू, वहीं से वायरस पनपा, फैला सारे जहां में। मेरी बात समझ में आ रही? तो ज़रा गौर कीजिएगा। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी झूठा मसीह जो नबूवत का दावा किया, जिसने सारी दुनिया में सेंटर्स बनाए, लेकिन मक्का मदीना में दाखिला ममनू है। और मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, क्योंकि मसीहा उसको कहते हैं जो कोई एक कौम के लोग किसी अपने में एक शख्स को चुन लेते हैं, अनॉइंटेड वन, एक ख़ास शख्स को चुनकर उसका हेड बनाते हैं, उसे मसीहा कहते हैं। और वो झूठा है तो दज्जाल हो गया। तो मसीह दज्जाल भी, ये भी मसीह दज्जाल हुआ। और जिसने मसीह होने का पहले दावा किया उसे भी लोगों ने मान लिया, वो भी मसीह दज्जाल। तो मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल। लिहाजा याद रखिए, ये निशान हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई मसीह दज्जाल आ गया, क़यामत की पूरी छोटी निशानियां हो गई, तो फिर बड़ी निशानियां भी बाकी हैं। तो फिर आप गलती में हैं। कोई ईसा इब्ने मरियम आसमान में गया ही नहीं था, ज़िंदा तो आएगा कहाँ से? मेरा 120 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था पिछले जन्म में, और मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ महादेव कल की अवतार बन के। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, ईसा इब्ने मरियम कोई आने वाले नहीं है। कोई शख्स ईसा इब्ने मरियम ही मसीहा है आखिरी, उनके अलावा कोई महदी नहीं। आप ही की हदीस में लिखा है जो कि महदी पैदा हो रहे हैं। तो फिर आप लोग उलमाए दिन के पास जाइए और पूछिए ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहाँ है। उनको बोलिए याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर हो गए, दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दे दिए, वाक़या हिंदुस्तान में हो गया। उनको बोलिए जाके कि दूसरी कौमों, हमने एक शख्स आया था मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान, हमने जब उस पर बदतमीज़ियाँ की, हमने फतवे जारी किए, तो उसने कह दिया कि उसने तौबा कर ली है। तो वो कह रहा है कि अब मुसलमानों में उसका कोई दावा नहीं। मगर जब उसने कहा था, यानी मैंने जब कहा था कि मैं मसीहा हूँ, महदी हूँ, तो लोगों ने नहीं माना। तो मैं ठीक है तौबा आप लोगों से, फिर से इस्लाम को रोके कर लिया। 2000 बग़ैर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के ऐलान कर दिया 2019 दिसंबर में, 10 दिसंबर में। फिर उसके बाद मैं अब नॉन मुस्लिम्स में तबलीग जारी रखा हूँ, तो इससे कोई एतराज़। लिहाजा मैं मसीहा महादेव शिव भगवान कल की अवतार आ चुका हूँ, और याजूज माजूज ज़ाहिर हो चुके हैं। और अब
वो इलाके को धोने के लिए अल्लाह ताला ने जो 40 दिन या 10 दिन की बारिश का जो जिक्र किया था, उसमें से 20 दिन तो गुजर ही गए। अब 20 या 22-23 दिन गुजर गए, अब बचे कुछ 17-18 दिन, तो वो भी हो सकता मुमकिन पूरा हो जाए। तो वो इलाका अल्लाह ताला सैनिटाइजेशन कर रहा है। ज़रा गौर कीजिए, सैनिटाइजेशन का जिक्र हदीस में आता है। कैसे करेगा अल्लाह ताला? बारिश भेज के। बारिश में वो ख़ास बारिश जो पढ़कर पूरे जरासीम को नरम करके पानी में अपने साथ बहा के ज़मीन में ले जाकर वहाँ सैनिटाइजेशन केमिकल्स के अंदर। बड़ी बड़ी नदियों का रंग मट्टी का हो गया है, मट्टी मिल गई है उसमें, सारे सिटी का पानी बहकर नदियों में जा रहा है, सैनिटाइजेशन चालू। अभी आप देखें तो मतलब ये कि याजूज माजूज चाइनीज जहाँ से ज़ाहिर होंगे, पहले जहाँ उनकी लाशें गिरी होंगी, वो बदबू उनकी सारे जहाँ में फैलेगी। इसका प्रूफ मास्क आप अपने मुंह पे लगाते हैं, क्योंकि वो बदबू के पैकेट्स, बदबू में क्या होता है? जरासीम होते हैं, वायरस होता है। बदबू बनती कैसे? वो जरासीम, देखिए सेंट का बॉटल होता है, आप उसके अंदर के जो बारीक बारीक स्प्रे करते हैं हवा में, तो हवा में फैल जाता है, तभी आपको खुशबू महसूस होती है ना। उसी तरीके से हवा में तो नहीं थी ना खुशबू पहले, वो उसी तरीके से जरासीम जब फैल जाते हैं हवा में तो उसकी एक बदबू महसूस होती है। अब इसमें तो बदबू होती नहीं है ना, किसमें? कोविड-19 में, या होती होगी, इंसान नहीं सूंघ सकता, लेकिन जरासीम तो है ना, तो वो आपके अंदर पहुंच ना जाए, इसीलिए आप क्या लगा रहे हैं? उस बदबू से बचने के लिए मास्क लगा रहे हैं। तो क्या ये बदबू सारे जहां में नहीं फैल गई? क्या सारे जहां में लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे हैं? सवाल मेरा, जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे हालात बहुत सख्त चलते हैं, बहुत तकलीफ़ों में, फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन अल्लाह का काम करने के लिए मुझे हंसना पड़ता है, हंसाना पड़ता है, क्योंकि मैं हूँ अल्लाह का हीरो। अल्लाह अकबर। आप लोग ये न्यूज़ देखिए। कौन सी न्यूज़? ये न्यूज़ देखिए वुहान सिटी की, जहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स वाले बोल रहे हैं। अलग अलग न्यूज़ देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि अल्लाह ताला कितना बड़ा चमत्कार है ये इस्लाम का, हदीस का। और इस्लाम, हदीस, कुरान हदीस जो है तस्दीक करती है बाइबल की, ओल्ड टेस्टामेंट की, वेदों की, पुराणों की, भगवत गीता की। तो ये भगवत गीता का चमत्कार है, ये वेदों पुराणों का चमत्कार है, ये वाक़या होना कुरान हदीस का चमत्कार है, ये उस महाविष्णु ओम अल्लाह एलोहिम का चमत्कार है जो ज़ाहिर हो रहा है। तो फिर हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर ईसाई, हर मजहबी आदमी को खुश होना चाहिए कि उसका मालिक महाविष्णु ओम अल्लाह है, वो लावारिस नहीं है। तो मतलब जो बदबू फैली सारे जहां में फैल गई कि नहीं फैल गई? फैल गई। तो ये याजूज माजूज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब से बताया गया था, ख्वाब से बताया गया था। और ख्वाब एक इलाके के बारे में पढ़ा, वो इलाका जहाँ याजूज माजूज होंगे और वो मरेंगे, और वहाँ से विबा, उनके अंदर कीड़ा पैदा होगा गर्दन में, और वो फैलेगा सारे जहाँ में। तो कोरोना वायरस, कोविड-19 क्यों कहते हैं? को मतलब कोरोना, VI मतलब वायरस, D मतलब डिजीज, 19 मतलब 19 में निकला, ये 2019 में, इसीलिए कोविड-19 वो सारे जहां में फैली। आप ज़रा गौर कीजिए इस बात पर। अल्लाहु अकबर। तो वो वायरस वहां से निकलता है और सारे जहां में फैलता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वायरस वहां से निकला है तो फिर मसीहा महादेव भी वहीं पर मौजूद होना चाहिए।
हो सकता है वहाँ पर कोई दावेदार झूठा दावेदार हो या जिसे सच्चा दावेदार हो जिसे लोग झूठा समझ रहे हैं। तो क्या मसीहा इस वक्त वुहान सिटी में है, चाइना में है? तो नोट करिए, अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, जब तक अल्लाह का खासिद लोगों में होता है उन लोगों में वहाँ अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करता। लेकिन वो अजाब मसीहा तक भी फैलेगा, तभी तो 40 डेज का लॉकडाउन का जिक्र आता है हदीस में, 40 दिन के लॉकडाउन का जिक्र। तूर पर ले जाना मसीहा का अपने अहले ईमान वालों को एक ऊंची जगह पर तूर पे लेकर जाना, तो तूर पर लेके जाना कोड वर्ड था। 40 दिन का लॉकडाउन जो इंडिया में हुआ 24 मार्च 2020 से लेकर 3 मई 2020, 40 डेज का, विदाउट कोई रियायत, विदाउट कोई फ्रीनेस के, टाइट एकदम। उसके बाद रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन किया गया, थोड़ी ढील दी गई। बात समझ में आ रही? तो क्या मसीहा वहां पर है चाइना में? नहीं, क्योंकि दूसरे निशानात ये बताते हैं किताबों के, सारे मजहबी किताबों के, मसीहा तो वहां आना था जहां पर मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद 1991 में एरोप्लेन पर ऐनक पहन कर आना था। दमास्कस के ईस्टर्न साइड हिंदुस्तान में, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट खादियान पंजाब में, इंडिया में ये वाक़या मेरे साथ हुआ, जहां मसीह दज्जाल के साथ 70,000 बनी इसराइली लोग जमा होना था। फिर मसीहा के बच्चे, नाम, माँ बाप का नाम, मसूद, सुरैया, भाई बहनों का जिक्र, बेटों का जिक्र, बेटियों का जिक्र, बीवियों का जिक्र, ये सारे निशान तो चाइना में तो होने वाले नहीं थे। समझ रहे हैं आप? अगर चाइना में इस वक्त आप समझ रहे हैं कि कोई शख्स है वहाँ पर, हो सकता वो मसीह हो, क्योंकि याजूज माजूज वहीं से ज़ाहिर होते हैं। हदीस में आता है कि मसीहा जब नीचे उतरेगा, कुछ या किसी को भेजेगा नीचे, जब जाएंगे, क्योंकि वो जो किसी वो उतरेगा शख्स वो खुद मसीहा है, तब उनकी लाशें हर तरफ पड़ी होंगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब याजूज माजूज जहाँ चाइना में है तो फिर मसीहा भी उधर होना चाहिए? नहीं। आज टेली कम्युनिकेशन पीरियड से आप देखें, टेली कम्युनिकेशन की वजह से हर तरफ टीवी पर हर तरफ आपको उनकी लाश, उनका जिक्र मौजूद मिलता है ज़मीन के हर तरफ। लिहाजा मैं इंडिया में हूँ तो सारे निशानों के मुताबिक मसीहा को हिंदुस्तान में आना था। 24 मार्च को पैदा होना था 1973, जो मैं आ गया हूँ। तो मसीहा वहाँ पर नहीं है कोई। अगर कोई बोलता है अपने आप को मसीह, तो ये सारे 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स उसके ऊपर फिट 1% भी नहीं होंगे, यानी 14 भी फिट नहीं होंगे। अभी बात समझ में आ रही? तो मतलब ये है कि मसीहा आखिरुज़्ज़मा मैं आ चुका हूँ, और हदीस में जो जिक्र आता है याजूज माजूज की लाशों को जो परिंदे उठाए, मतलब वो जो जेसीपीज, बड़ी बड़ी गर्दन वाले परिंदे अल्लाह भेजेगा, जैसे एरोप्लेन उतर रहा है वहाँ जेसीपीज है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आसमान से उतर रहे हैं जेसीपी, या अगर ऊंची जगह से ऐसे आ रहे हैं चढ़कर जेसीपीज वगैरह जो खोद कर ऐसे निकालते हैं, एक्सकेवेटर्स ऊपर से पहाड़ पे से, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको परिंदे उतर रहे हैं पहाड़ पर, क्योंकि बड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना। वो लाशों को गाड़े, तो ये लाशों को गाड़ दिया गया, तो उनकी बदबू सारे जहां में फैली, हवा की शक्ल में, वायरस। इसका सबूत आपका मास्क लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई इसमें शक? मजबूर हैं लोग ये कि भाई अगर हम इसको याजूज माजूज मान लेते हैं चाइनीज़ को, और ये कोविड-19 वही कीड़ा गर्दनों में उनके मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं मसीहा महादेव हूँ। तो वो लोग कबूल नहीं करना चाहते। ये उनकी जहालत है, ये उनका कुफ्र है, मुनाफिकत है। वक्त 1.5 दिन अल्लाह के नबी ने दिया था, वो निकल गया, यानी 1500 साल खमरी यानी लूना। फिर अब किसका इंतज़ार है?
क़यामत की पूरी निशानियां हो गई, अभी भी अक्ल नहीं आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप लोग जाएं उलमाए दीन से पूछें कि कहाँ है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, ताकि मुझे भी बताना आके मैं और मेरे अहले ख़ानदान के साथ बैत कर लेंगे उनकी, क्योंकि उनके बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, समझे। अरे मैं तो भाई नॉन मुस्लिम्स में मोमिनों में तब्दील कर रहा हूँ, मैं मुनाफिकों से मेरा कोई लेना देना नहीं, चाहे वो शिया लोग हों जिन्होंने अपना इमाम गैब बना के रखा है, इमेजिनरी, और वो समझते हैं कि ईसा अलग है महदी अलग है, वो तो कभी आने वाला है ना। ये दूसरे लोगों का जो ये समझ रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम आसमान पे ज़िंदा है, उतरेंगे आएंगे, कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि गई नहीं थी आसमान में, तो आएंगे किधर से। रूह गई थी, वापस दोबारा जन्म लेकर मैं मसीहा महादेव आ गया कल की अवतार। अब आपको समझ में नहीं आता तो हम क्या करें, ठीक है। इसीलिए हमने आप लोगों से तौबा कर दी कि बैलों के सामने बीन बजाने से, भैंस के सामने बीन बजाए तो उसे आवाज़ तो सुने आती है, लेकिन उसे उस धुन की, उस ख़ास आवाज़ की मतलब नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं, वो मुर्दे होते हैं रूहानी, उनमें जान होती है, जानवरों में जान होती है सिर्फ, इसीलिए उसे जानवर कहते हैं, लेकिन इंसान में ख़ास तौर से रूह होती है अल्लाह की, इसीलिए वो अल्लाह का खलीफा कहा गया है। लेकिन बाज़ जानवरों में इंसानों की रूह को डाल दिया जाता है सज़ा के तौर पे, जैसे खंजीर में डाल दिया जाता है, बाज़ बंदर में, कुरान इसकी गवाही देता है। लिहाजा मेरी बात समझ में आई भाइयों, याजूज व माजूज को कैसा धोया जा रहा है, उन इलाकों को जहाँ से वायरस निकला। देखिए ये अल्लाह का चमत्कार कुरान हदीस का है, कोई शक इसमें। अरे भाई जब सूरज निकलता है तो सारी दुनिया देखती है, तो ये भी सारी न्यूज़ मैंने तो नहीं बनाई, लोग खुद कह रहे हैं, चाइनीज़ के अगेंस्ट जो लोग हैं कह रहे हैं हिंदुस्तानी, कि चाइना अपने सबूत कोविड-19 वायरस के मिटा रहा है बारिश के ज़रिए, यानी तूफ़ान के ज़रिए, सैलाब के ज़रिए। अरे उसकी इतनी औकात कहाँ, ये तो अल्लाह मिटा रहा है, साफ़ कर रहा है, ज़मीन को सफाफ कर रहा है पूरे इलाके को। मेरी बात समझ में आ रही?